علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آئیے آپ کے سماعت کے حوالے بہت ہی عمدہ بیان لے کر حاضر ہوں سید نورانی میاں کی، تو اس بیان کو مکمل سماعت فرمائیں۔ اگر ہمارے چینل پہ نئے جڑے ہیں، پہلی بار آئے ہیں، تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بٹن کو بھی آن کر دیں تاکہ آپ کے پاس آسانی سے ہمارا ویڈیو پہنچتا رہے۔ اللہ پاک اپنے محبوب سے فرما رہا ہے، قل، اے محبوب آپ فرما دو، یعنی یہ بات حضور نہیں کہہ رہے، اللہ پاک کہلوا رہا ہے، آپ فرما دو کہ میں تمہاری طرح ایک سادھارن منشیہ ہوں۔ کیا بات ہے، بے شک میری طرف اللہ کی جانب سے وحی کا نزول ہوتا ہے، میں تمہاری طرح ایک عام انسان ہوں، خاصیت یہ ہے کہ مجھ پر قرآن کا نزول ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، اسی آیت کو یہ لوگ دھوکہ دینے کے لیے بیچارے بھولے بھالے سنیوں کو سناتے ہیں۔ میں نے سوچا چلو آج میں اسی آیت کو روح سخن بناتا ہوں۔ واہ، بے شک، سبحان اللہ۔ اگر آپ اس آیت میں غور کیجئے، میں نے آپ سے 10 منٹ لیا ہے، اس میں سے 1 منٹ جانے والا ہے، اس لیے بالکل دھیر سے سننا ہے، چاہے بات سمجھ میں آوے یا نہ آوے۔ توجہ، اس آیت میں اگر آپ غور کیجئے تو 2 الگ الگ اس میں رنگ ہیں، الگ الگ عنوان ہے۔ کیا ہے؟ دھیر کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ بولنا بھی نہیں ہے، دھیر کا مطلب یہ کہ سونا نہیں ہے، 10 منٹ بعد سو جائیے گا۔ الگ الگ ٹاپک ہے ایک ہی آیت کا، اب حالانکہ پوری آیت بھی نہیں ہے، آدھی ہے، لیکن اسی میں 2 الگ الگ سندیش ہے، الگ الگ عنوان ہے، الگ الگ رنگ ہے، الگ الگ کلر ہے، الگ الگ انداز ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ ایک حصہ وہ ہے جس کا تعلق فضیلت سے ہے، کس سے ہے؟ بولیے، فضیلت سے۔ اور دوسرا حصہ وہ ہے جس کا تعلق مثلیت سے ہے۔ میں آپ کی آسانی کے لیے کہہ دوں، ایک وہ ہے جس کا تعلق مہانتا سے ہے، کس سے؟ مہانتا۔ اور دوسرا وہ حصہ ہے جس کا تعلق سمانتا سے ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ مہانتا کا تعلق نیچے سے اوپر جانا، ٹو گو اپ۔ جیسے بندہ اگر بڑا ہو جائے تو کہتے ہیں نا بڑا مہان ہو گیا ہے، تو فضیلت نیچے سے اوپر جانے کا نام ہے، اور مثلیت یعنی سملیرٹی، سمانتا، اوپر سے نیچے آنے کا نام ہے۔ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ تب تو بڑی اچھی بات ہے اگر آپ سمجھ رہے ہو۔ واہ واہ واہ، زندہ باد۔ یہ دونوں نبی کے لیے ضروری ہے۔ بے شک۔ ہاں، یہ فرق ذہن میں رکھیے گا۔ اگر ہم نبی کے لیے مہانتا مانے اور سمانتا نہ مانے تو پھر وہ نبی نہیں ہوگا، معاذ اللہ خدا ہو جائے گا۔ یعنی ہم نبی کو نبی مانے اور یہ نہ مانے کہ وہ انسان ہے تو کفر یہ بھی ہے، کیونکہ اس نبی کو پھر معاذ اللہ خدا ماننا پڑے گا، کیونکہ خدا کا کوئی بدیل و مثیل نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، وہ لم یلد ولم یولد ہے۔ اور اگر ہم نبی کے لیے سمانتا مانے، مہانتا نہ مانے تو یہ بھی کفر ہو جائے گا۔ یعنی ہم نے اپنی طرح تو مانا لیکن اپنے سے بے مثال نہیں مانا۔ تو ایک نبی میں دونوں ہونا، زور سے بولو، ضروری ہے۔ توجہ، آپ لوگ تو سمجھ رہے ہیں، آپ لوگ بھی وہ چیز تو آپ ہی کے لیے ہے، دونوں میں دونوں ہونا ضروری ہے، ایک نبی میں دونوں ہونا ضروری ہے، یعنی فضیلت بھی ضروری اور مثلیت بھی ضروری۔ ہم فضیلت مانے مثلیت نہ مانے تو شرک ہونے کا خطرہ ہے، اور مثلیت مانے اور فضیلت نہ مانے تو کفر ہونے کا خطرہ ہے۔ عقیدہ سچا یہ ہے کہ نبی میں فضیلت کو بھی مانو، مثلیت کو بھی۔ سبحان اللہ، بے شک، بے شک۔ کلیئر ہو رہا ہے نا؟ اسی فضیلت و مثلیت، توجہ چاہوں گا آپ سب کی، اسی فضیلت و مثلیت کے درشٹی کون سے
نبی کے تعلق سے جب عقیدہ بنتا ہے, ہماری وچار دھارا جب بنتی ہے, تو کل 5 پرکار کی بنتی ہیں, 5 الگ الگ طریقے کی. کتنی؟ 5. آپ نے وعدہ کیا تھا پھر بھی منہ کھول لیا, میں نے 10 منٹ کا کہا. 5 طرح کی بنتی ہیں. یہ 5 سے نہ 4 ہے نہ 6 ہے, 5 عقیدے بنتے ہیں. کیا بنتے ہیں؟ اور آسان کر دوں, 5 الگ الگ وچار دھارا بنتی ہے. اسی فضیلت و مثلیت کے درشٹیکون سے نبی کے تعلق سے 5 الگ الگ. پہلے فرقے کا نام ہے کافرین. کیا؟ زور سے بولو. کافرین. ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ نبی کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں. They don't believe upon the dignity of prophet. ایک دم انکار کرتے ہیں اور مثلیت کا اقرار کرتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ اے نوح, ما نراک الا بشرا مثلنا, ہم تمہیں ایک سادھارن منشیہ کے سوا کچھ نہیں سمجھتے. اللہ کا عذاب آ گیا. اللہ. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نبی لوط کی فضیلت کا انکار کیا اور کہا کہ اے نبی, اگر آپ نبی ہو تو اپنے خدا سے کہہ دو ہم پر آگ برسا دیں, ہم یہ کام نہیں چھوڑیں گے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا یا موسیٰ اذهب انت وربک فقاتلا انہا ہنا قاعدون, جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو, ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے. ایسا بیٹھے رہے کہ ایٹھے رہ گئے. دریائے نیل نگل گئی اور وہ پار کر گئے جنہوں نے دامن کلیم ہاتھ میں تھام لیا. کیا بات ہے. یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم ولی دین. یہ وہی لوگ ہیں جو نبی کی مہانتا کو نہیں مانتے, صرف سمانتا کو مانتے ہیں. یہ کون ہے؟ کافر لوگ ہیں. زور سے بولو کون ہے؟ کافرین ہے. پہلا فرقہ سن لیا. دوسرا فرقہ مشرکین. مشرک سمجھے؟ جو خدا کی ذات یا اس کی صفات میں شرکت کا قائل ہو, پارٹنر کا قائل ہو, شریک کرے, وہ مشرک ہے. جو خدا کے علاوہ بھی کسی کی پوجا کرے وہ کون ہے؟ مشرک ہے. دوسرا فرقہ مشرکین کا ہے. یہ بالکل کافروں کے جسٹ اپوزٹ ہے. کافر لوگ مہانتا کا انکار کرتے ہیں, سمانتا کو مانتے ہیں. مشرک اسی کا الٹا کرتا ہے. مشرکین نبی کی سمانتا کو مانتے ہیں, مثلیت کو, مہان سمانتا کو کا انکار کرتے ہیں, بالکل انکار کرتے ہیں, اور مہانتا کا ڈنکے کی چوٹ پہ اقرار کرتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے صاف کہا کہ نبی تو انسان ہی نہیں ہو سکتا, وہ تو ہماری طرح ہو ہی نہیں سکتا. اتنا دھوکہ کھا گئے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے. یہودی اسی دھوکے میں آ گئے تو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے. ان کی یہ وچار دھارا ہے کہ نبی جیسے ہم ہیں ویسے نبی ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے باپ ہمارے ابا ہیں, لیکن نبی کے ابا تو معاذ اللہ وہ خدا کی طرف نسبت کرنے لگے. کیوں؟ انہوں نے سمانتا کا انکار کیا, مہانتا کا جھنڈا اٹھایا, اس لیے یہ لوگ مشرک ہو گئے. کیا ہو گئے؟ تو کلیئر ہوا, دونوں کا فرق معلوم ہوا. جو کافر ہیں وہ مہانتا کو نہیں مانتے, سمانتا کو مانتے. جو مشرک ہیں وہ سمانتا کو نہیں مانتے, مہانتا کو مانتے. ایک تیسرا فرقہ بھی ہے, مذبذبین. کون؟ کنفیوز لوگ جو اسمنجس میں رہتے ہیں. وہ کبھی مہانتا کو مانتے ہیں تو کبھی سمانتا کو مانتے ہیں. کبھی سنیوں کی کانفرنس میں بھی جاتے ہیں, کبھی ان کے اجتماع میں بھی جاتے ہیں. کبھی ادھر سوچتے ہیں, کبھی ادھر سوچتے ہیں. وہ منہ سے کہتے ہیں مزار پہ نہ جاؤ, شرک ہے, اور پھر تعویذ لینے کے لیے صوفی صاحب کے پاس بھی چلے جاتے ہیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. کنفیوز ہیں, منافق ہیں. کون ہیں یہ لوگ؟
इन्हीं के बारे में कुरान पाक ने कहा मुज़ब्ज़बीन, मैंने 10 मिनट का वादा किया था, ऐसी वादा खिलाफी आपको नहीं करना चाहिए। देखिए 3-4 लोग, हालांकि अगर 2-3 मिनट और बढ़ जाते तो ये दूसरों को बैठाते, लेकिन आइए चलिए जिसकी जैसी किस्मत। तैयार हैं आप लोग? हाँ, अब मेरा 4 से 5 मिनट गुजर चुका, 5 ही बाकी है, पूरी तवज्जो के साथ। तीसरा फिरका इन्हीं के बारे में कुरान ने कहा मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिका ला इलाहा उलाए वला इलाहा उलाए। ये लोग कंफ्यूज हैं, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। आज की आसान जबान में कहा जाए तो सुलह कुल्ली लोग। कौन? क्लियर हो गया? अब आइए चौथा फिरका सुनिए। पहला आपने सुना काफिरीन, दूसरा मुशरिकीन, तीसरा मुज़ब्ज़बीन, चौथा है मुदाहनीन। उलमा की तवज्जो चाहूंगा, मुदाहनीन आपने नहीं कैच किया होगा, मैं आपको बता दूं, गुस्ताखों का फिरका। किसका? नबी की शान में तौहीन करने वालों का फिरका। गौर से सुनिएगा, यही समझाना चाह रहा था चौथा फिरका। इनका आलम यह है कि ये लोग फजीलत का सिर्फ इकरार करते हैं, प्रचार नहीं करते, सिर्फ इकरार करते हैं, इनकार नहीं करते। और मिसलियत की जब बात आती है, समानता की, तो शहर शहर, नगर नगर, गली गली, गांव गांव जाकर कांव कांव करते हुए उसका प्रचार भी करते हैं, प्रसार भी करते हैं। क्या बात है। और जब उनसे कोई पूछता मुल्ला जी कभी फजीलत की भी बात कर लिया करो, तो कहते हैं हम कहां इनकार करते हैं। क्या बात। कैच कर रहे? कुछ फर्क दिमाग में बैठा इस बूढ़ी रात में? आए बैठ रहा है? ये लोग फजीलत को इनकार नहीं करते, सिर्फ इकरार करते हैं। इनको मालूम है कि अगर फजीलत का इनकार कर दिया तो कुफ्र हो जाएगा, तो इकरार करते हैं, प्रचार नहीं करते। प्रचार सिर्फ समानता का करते हैं कि नबी की समानता ये है कि वो हमारी तरह बशर है, वो भी बाप वाले हम भी बाप वाले, वो भी औलाद वाले हम भी औलाद वाले, वो भी नाना दादा हम भी नाना दादा, वो भी चाचा भाई हम भी चाचा भाई। ये समानता का प्रचार करते हैं। और जब कोई गैरतमंद सुन्नी पूछता है भाई फजीलत का भी प्रचार करो, महानता का, तो कहते हैं हम कहां इनकार करते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। कै फिरके हुए? पीछे वाले बोलो कै हुए? पहला काफिरी, दूसरा मुशरिकीन, तीसरा टफ है मुज़ब्ज़बीन, कंफ्यूज कह दिया करो, असमंजस वाले, चौथा मुदाहनीन यानी गुस्ताखों का, और पांचवा फिरका है मोमिनीन का, हमारा आपका अहले सुन्नत का वल जमाअत का। हम क्या करते हैं? हम लोग, तवज्जो से सुनिएगा, हम लोग नबी की मिसलियत का सिर्फ इकरार करते हैं, प्रचार तो नहीं करते, सिर्फ इकरार करते हैं। हम मानते हैं कि नबी जो है वो हसनैन के बाबा हैं, हम मानते हैं कि वो फातिमा के अब्बा हैं, हम मानते हैं कि वो जनाबे अली के भाई हैं, सैयदा के लाल हैं, हम मानते हैं कि जनाबे आमिना के जिगर के टुकड़े हैं, अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं, अबू तालिब के भतीजे हैं, हम मानते हैं कि वो अब्दुल्ला के बेटे हैं। हम समानता का इनकार नहीं करते, सिर्फ इकरार करते हैं। जैसे वो लोग महानता का सिर्फ इकरार करते हैं, ऐसे ही हम लोग समानता का सिर्फ इकरार करते हैं। और जब बात फजीलत मुस्तफा की आती है, जब बात डिग्निटी ऑफ प्रॉफिट की आती है, जब बात मुस्तफा के जाहो जलाल, फजलो कमाल, हुस्नो जमाल, जूदो नवाल, बरगुज़ीदगी, इमामत और क़यादत और सियादत और शराफत और नजाबत की आती है, तो हम डंके की चोट पे उसका प्रचार करते हैं। हम कहां मिसलियत, हम कहां कहते हैं कि नबी इंसान नहीं है। यार नबी की इंसानियत का अगर जिक्र किया तो फिर फर्क क्या रहा? मुस्तफा की शान फजीलत को बयान करो। एक मुनाजरा हो रहा था इसी सीमांचल में, ये अभी जो जल्दी हुआ वो नहीं, कई 60-70 साल पहले की बात है, मेरे दादा के जमाने।
सुन्नी उलमा भी आए और ये लोग भी आए। मैं इनका नाम लेके अपने मुंह का वजू खराब नहीं करना चाहता, पर ये कह दूं समझ जाओ। ये लोग भी आए, एक दिन पहले आ गए दोनों। रात भर सुन्नी लोग भी किताब पढ़ते रहे, वो लोग भी पढ़ते रहे। सुन्नी अपने तरीके से पढ़ रहे थे, वो अपने तरीके। मेरा 10 मिनट पूरा हो गया, अब आप सो सकते हैं। सुन्नी अपने तरीके से पढ़ रहे थे, वो अपने तरीके से पढ़ रहे थे। जो वो लोग थे उनकी कोशिश ये थी कि कुछ ऐसी दलील मिल जाए कि नबी की शान को घटाया जाए, शान घटाई जाए, ऐसी दलीलें मिले। चाहे इल्मे गैब की बात हो, चाहे हाजिर और नाजिर की बात हो, चाहे इख्तियार मुस्तफा की बात हो, चाहे जिस चीज की बात हो, बस शान घट जाए। यानी वो समानता के दलाइल ढूंढ रहे थे। किसके? और जो सुन्नी उलमा थे वो रात भर मुताले में कोशिश कर रहे थे कि महानता के दलाइल मिले, फजीलत के दलाइल मिले। जब सुबह 10 बजे मुनाजरा शुरू हुआ तो जो सुन्नी मुनाजिर थे खड़े हुए और उन्होंने गांव वालों से कहा, गांव वालों, इससे पहले कि मुनाजरा शुरू हो एक सवाल है, उसका जवाब दे दो। सबने कहा ठीक है, पूछिए। कि रात भर ये लोग हदीस में कीड़े निकालने की कोशिश कर रहे थे कि कुछ ऐसा मिल जाए कि नबी की समानता नजर आए, और हम लोग इस कोशिश में लगे थे कि बस ऐसा मिलता रहे जिससे महानता नजर आए। तो गांव वालों बताओ, रात किसकी अच्छी गुजरी, मेरी अच्छी गुजरी या इनकी अच्छी गुजरी? तो सारे गांव वालों ने कहा, हजरत आपकी अच्छी गुजरी। इसी पे मुनाजरा खत्म हो गया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। इसी पे खत्म हो गया किस्सा। चप्पल छोड़ के भागे। पूरे गांव ने कह दिया कि इनकी रात अच्छी नहीं, आपकी रात अच्छी गुजरी। तो ये है फर्क। एक वो है जो समानता का जिक्र करते हैं और एक हम हैं जो मुस्तफा की महानता का जिक्र करते हैं। आप जरा देखो, यही सुन्नते इलाहिया है। तवज्जो चाहूंगा, यही क्या है? सुन्नते इलाहिया है। अल्लाह ताला ने पूरे कुरान में कहीं भी मुस्तफा की समानता खुद नहीं कही कि ए नबी तुम उनकी तरह। इसी आयत में खुद नहीं कही, महबूब से कहलवाया। आप जरा देखें, महबूब से कहलवाया कि ये महबूब आप कहते। अच्छा एक बात बताओ, ये लोग कितने काबिल हो गए हैं? जो पैगाम अल्लाह अपने मुकद्दस कलाम में हमें दे रहा है उससे कितने मुनहरिफ हो गए। इसी कुरान में हमारे आका तो हमारे आका, जब इब्राहिम का जिक्र किया अल्लाह ने तो यूं किया, वज़कुर फिल किताबी इब्राहिम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। जब हजरत इस्माइल का जिक्र किया तो फरमाया, वज़कुर फिल किताबी इस्माइल इन्नहु कान सादिक़ल वअदी व कान रसूलन नबिय्या। जब हजरत इदरीस का जिक्र किया तो फरमाया, वज़कुर फिल किताबी इदरीस इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या व रफ़अनाहु मकानन अलिय्या। जब हजरत मूसा का जिक्र किया तो फरमाया, वज़कुर फिल किताबी मूसा इन्नहु कान मुखलसन व कान रसूलन नबिय्या। वज़कुर फिल किताबी मरियम इद इंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िय्या। अरे एक रब की शान है कि अपने नबियों का जिक्र करे तो समानता का नहीं, महानता की बात करे। तुम अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह, या अली, जिंदाबाद, या अली। और एक तुम हो 4 किताब पढ़ के समानता का झंडा लेके चल रहे हो। याद रखना, मैं अगर अपने आप को, ए भैया थोड़ा ऐसे बैठो, ऐसे घूम के, अच्छा नहीं लग रहा। ये खाला बूबू का जलसा नहीं है, ये मुस्तफा का जलसा है। ऐसी रात बार बार नहीं आती। और आज मैं अपने पैशन से थोड़ा हट के, क्योंकि जब मैंने ये उन्वान देखा और ये दर्द देखा कौम का और उलमा की खिदमत, तो मैंने सोचा कि आज की तकरीर में आवाम के लिए मुझे करनी ही नहीं है। कैच कर ले तो बोनस है। आज की तकरीर इन हजरात के लिए है।
इसे आप लोग अपने अपने मौके पे जुमा में बोले तो इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। मैं अगर अपने आप को बार बार कहूं कि नूरानी जाहिल है, नूरानी जाहिल है, नूरानी जाहिल है, तो आप बोलोगे मुझे जाहिल? नहीं। बोलो, आप क्या कहोगे ये सुन के? यार हजरत जो है अपने आप को जाहिल कह रहे हैं। ये हाफिज भी हैं, कारी भी हैं, आलिम हो गए, बगदाद तक पढ़ लिया, अपने आप को जाहिल कह रहे हैं। लगता है हजरत खाकसारी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इनकिसारी, कसरे नफ्सी, अपने आप को बहुत अपना नफ्स तोड़ करके बयान कर रहे हैं, छोटा बन के बयान कर रहे हैं। ये इनकी शान है। क्यों? क्योंकि अगर कोई शख्स अपने आप को कितना ही घटिया कहे, उसके कहने से दूसरा उसे घटिया नहीं कहता। लेकिन अगर मेरे वालिद, मेरे अब्बा हुजूर गाजी मिल्लत सिर्फ एक बार अगर मुझे जाहिल कह दे, तवज्जो चाहूंगा, सिर्फ एक बार जाहिल कह दे तो मेरे लिए सनद हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फिर सब मुझे जाहिल कहेंगे, क्योंकि नूरानी को जाहिल उसने कहा जो नूरानी से बड़ा है। तवज्जो चाहूंगा। तो जब बड़ा, इधर जब बड़ा अपने छोटे को कुछ कह देता है तो उस छोटे के लिए सनद हो जाती। क्या हो जाती है? सर्टिफिकेट हो जाता है। यही वजह कि मक्के के लोग जिसे अबुल हिकम हिकमत वाला कहते थे, मेरे नबी ने एक बार अबू जहल कह दिया तो उसके लिए सनद हो गई। क्या बात कर। अल्लाह पाक यही तो फरमा रहा कि ये महबूब यहाँ बशरियत के साथ मिसलियत है। मिसलियत यानी समानता है, इसलिए इसे मैं बयान नहीं करूंगा। मैं कहूंगा तो सनद हो जाएगी। तुम बयान करो ताकि लोग खाकसारी समझे, लोग इनके सारी। मैं नहीं कहूंगा जाहो जलाल हो तो मैं बयान करूं, फजलो कमाल हो तो मैं बयान करूं, हुस्नो जमाल हो तो मैं बयान करूं, जूदो नवाल हो तो मैं बयान करूं, बरगुजीदगी हो तो मैं बयान करूं, बुलंद पायदगी हो तो मैं बयान करूं, बुलंद रसीदगी हो तो मैं बयान करूं। ऐ मुस्तफा, मैं रब हूं। अगर मैं तेरी तारीफ करूं तो समानता नहीं महानता का जिक्र करूंगा। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरु व किताबुम मुबीन मैं कहूंगा। कद जाअकुम बुरहानु मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना मैं कहूंगा। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा मैं कहूंगा। बशीर नज़ीर मैं कहूंगा, सिराज मुनीर मैं कहूंगा, यासीन मैं कहूंगा, ताहा मैं कहूंगा, व दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाअका रब्बुका व मा क़ला मैं कहूंगा। व शम्सि व दुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा वन नहारी इज़ा जल्लाहा मैं कहूंगा। जब तेरी आंखों की बात आएगी तो मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा मैं कहूंगा। तेरी ज़बान की बात आएगी तो व मा यंतिक़ु अनिल हवा मैं कहूंगा। तुम्हारे दिल की बात आएगी तो यासीन मैं कहूंगा। वजूद की बात आएगी तो ताहा मैं कहूंगा। ऐ मुस्तफा, जब आपके हाथों का जिक्र करना होगा तो यदुल्लाहि फौक़ा अयदीहिम मैं कहूंगा। जब आपके कदमों का जिक्र होगा तो ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन मैं कहूंगा। वो आपके सीने का जिक्र होगा तो व रफ़अना लका ज़िक्रक मैं कहूंगा। मगर ऐ मुस्तफा, यहाँ पर बशरियत के साथ मिसलियत है। जब तुम बयान करोगे तो लोग समझ जाएंगे कि मेरा मुस्तफा खाकसारी कर रहा। अरे यार, नमरूद का नाम सुना है? वैसे सुनने लायक नाम नहीं है। नमरूद जैसे सड़ा हुआ अमरूद, मर जाए तो न फातिहा न दुरूद। इतना बड़ा मरदूद, अच्छा बंदा नहीं बन सका, अच्छा बंदा नहीं बन सका, खुदा होने का दावा कर रहा था। अल्लाह ताला ने अपने नबी हजरत इब्राहिम को हुक्म दिया, इब्राहिम जा। नमरूद की आंखों में आंखें डाल के हक की बोली बोल। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहुंचे और कहा, सुना है तूने ये दावा किया है कि मैं खुदा हूं, तो सुन,
मैं जिस खुदा का बंदा हूं वो मारता भी है जिलाता भी है। बेशक बेशक। तू खुदा है तो ऐसा करके दिखा। नमरूद ने अपने कैद खाने से, जो प्रिजन था, वहां से 2 कैदियों को बुलाया। जिसकी कल छुट्टी होने वाली थी, रिहाई, उसे फांसी पे लटका दिया, और जिसे कल फांसी लगने वाली थी उसे आजाद कर दिया। कहा देखो इब्राहिम, मैं भी मारता और जिलाता हूं। हजरत इब्राहिम चाहते तो नमरूद की इस बचकानी दलील की धज्जियां उड़ा देते, लेकिन आपने एक सवाल और कर दिया और कहा सुन, मैं जिस खुदा का बंदा हूं वो पूरब से सूरज निकालता है, पश्चिम में डुबोता है। फअति बिहा मिनल मगरिब, मगरिब यानी पश्चिम की तरफ डुबोता है। तू खुदा है तो पश्चिम से निकाल के दिखा। फबुहितल्लज़ी कफर, टूट गई नमरूद की कमर, न देखे इधर न देखे उधर। सोचने लगा कि जमीन का मामला होता तो कुछ लेन देन कर लेते, कुछ टेबल के ऊपर से कुछ टेबल के नीचे से, सुविधा शुल्क। ये तो आसमान का मामला है। सूरज न मुझसे पूछ के निकलता है न मुझसे पूछ के डूबता है। अब क्या करे? वे कहावत मशहूर है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। वैसे ही अग्नि कुंड उसने बुलंद किया, वो एक अलग चैप्टर है। हार गया, नहीं निकाल सका। क्लियर है कि नहीं? अब आओ दूसरी बात सुनो। मकामे सहबा है, सारे सहाबा ने असर की नमाज पढ़ ली थी, अली की नमाज़े असर बाकी थी। और ये रवायत बड़ी मशहूर है, अल-मुअजमुल मुहीत लित-तबरानी में ये हदीस भी है। उसके अलावा और बहुत सारी हदीस की किताबें हैं जिनमें ये हदीस सही हसन सही मौजूद है कि सारे सहाबा ने नमाज पढ़ ली, अली की नमाज बाकी थी। अली क्यों नहीं पढ़ पाए? क्योंकि अली के जानू पे सर रख के नबी सो रहे थे। अली के जानू पे सर रख के नबी। अब हदीस में तो है कि नबी सो रहे थे, लेकिन मेरा दिल कहता है सो नहीं रहे थे, अली का दिल टो रहे थे। अल्लाह करे कैच कर लो यार, इस मजा आ जाएगा। मैं जानता हूँ 11 नहीं बज रहा है, लेकिन थोड़ा वैसे ही मूड बनाओ। अली का दिल टो रहे थे। देखिए, अली नमाज के लिए उठता है या मेरी ताबेदारी में बैठा रहता है? वो अली है। आंख खोली थी तो रुखे मुस्तफा को पहले देखा। खिलाफ वर्जी कैसे करते? आज की जमात के कठमुल्ले होते तो कहते ए हुजूर उठिए उठिए, नमाज, अल्लाह नाराज हो जाएगा, नमाज नमाज। वो नमाज के लिए हुजूर को जगा देते, मगर अली ने ऐसा नहीं किया। दिल में ख्याल आया कि चलो उठो, नमाज कहीं कज़ा ना हो जाए, क्योंकि जीवन में कभी अली की नमाज कज़ा हुई नहीं थी। क्या बात है। फिर सोचा कि अगर मैं हिला और हुजूर की आंख खुल गई तो हुजूर को बेआराम करूंगा, और अगर हुजूर को तकलीफ हुई, हुजूर को जरा सी भी तकलीफ हुई, तो ये खुदा को भी पसंद नहीं आएगा। ये कुरान में कि जिसने मेरे इन्नल्लज़ीना युज़ून अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाह, तो जो नबी को तकलीफ दे उसने खुदा को तकलीफ दी। तो अगर मैं नबी को जरा सा हिला दूं तो हुजूर को तकलीफ, हुजूर को समस्या हुई तो अल्लाह ताला ऐसी नमाज कबूल नहीं करेगा। क्या करूं? इसी तशवीश में पूरा समय चला गया, सूरज डूब गया। सूरज का डूबना था कि अली उस नमाज के छूटने का गम बर्दाश्त नहीं कर सके। वो गम सीने से निकल के दिमाग तक, दिमाग से निकल के आंखों तक आया, आंसू का कतरा बन गया। इतना गम था नमाज छूटने का। मुसलमानों, कभी तुम्हें नमाज छोड़ने का गम हुआ है? जब पढ़ने की खुशी नहीं होती तो छूटने का गम कहां से हो? अली को देखो, नमाज कज़ा हुई थी, कज़ा, गम बर्दाश्त नहीं कर सके, आंख से आंसू निकल पड़ा। वो आंसू का कतरा नीचे टपका तो सरकार के रुखे वद्दुहा के चेहरे के ऊपर हुजूर के गिरा।
चेहरे पे गिरा तो सरकार ने आंखें खोल ली। आंखें खोली, अली को रोता देखा, कहा मालक या आखी, क्या हुआ मेरे भाई? कहा हुजूर आसमान की तरफ देखिए, सूरज डूब गया। सबने असर की नमाज पढ़ ली थी, मैं इसलिए नहीं पढ़ सका क्योंकि मेरे जानू पे आप अपना सरे पाक रखकर सो रहे थे। अब अगर मैं पढ़ने के लिए उठता तो आपको तकलीफ होती, बस इसलिए मैंने नमाज छोड़ दी। लेकिन ये गम पहली बार महसूस हुआ, बर्दाश्त नहीं कर सका। सरकार आपकी आंख खुल गई, मुझे माफ कीजिए। इतना कहना था, नबी उठे। हदीस के अल्फाज सुनो, नबी उठे। इमाम तबरानी इस हदीस को नकल करते हैं कि सरकार उठे और आसमान की तरफ सर किया और अपने दोनों हाथों को उठा के कहा कि ए अल्लाह तू गवाह रहना, इन्ना अलीयन कान फी ताअतिका व ताअति नबीयिका फरदुद लहु शम्स। ए अल्लाह, ये मेरा अली, तेरा अली, मेरी और तेरी फर्मा बरदारी में था। क्या बात है, वाह वाह। एक बात बताओ, नमाज पढ़ना फर्मा बरदारी है या छोड़ना फर्मा बरदारी है? बोलिए जोर से, नींद ही में बोल दीजिए। पढ़ना, बोलिए क्या है? पढ़ना फर्मा बरदारी है। और हुजूर छोड़ने वाले के लिए कह रहे, अली मेरी और तेरी फर्मा बरदारी में था। हम समझ गए कि जो नबी का फर्मा बरदार वही खुदा का फर्मा, जो नबी का हो गया वही खुदा का हो गया। जिसके नबी नहीं उसका खुदा नहीं, क्योंकि एक मुहिब है, दूसरा महबूब है, एक चाहने वाला, दूसरी उसकी चाहत। यहाँ कुछ मेरा तेरा नहीं। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत, दरियाए रहमत, कंजुल करामत, अशा इमाम अहमद रजा खां मुहद्दिस बरेलवी ने कुफ्र के ताबूत पर आखिरी कील ठोकते हुए जब अपना अकीदा बयान किया तो यूं अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा। समझ में आ रही है ना? तवज्जो के साथ। हाँ, बीच बीच में मैं वो कोशिश करता हूँ वो डोज भी दे दूं जो आप लोग लाइक करते हैं, वरना मतलब की बात जो है वो उलमा के लिए है। तवज्जो है ना आप लोगों की? पूरे हौसले के साथ अली के लिए कहा जा रहा है, ए अल्लाह, मेरा अली, तेरा अली मेरी और तेरी फर्मा बरदारी में था। फरदुद लहु शम्स, इसके लिए सूरज को पलटा दे। कोई हल्की फुल्की बात नहीं है, सूरज को पलटा दे। इतना कहना था, डूबा हुआ सूरज पलट गया, पलट गया। सरकार ने इशारा किया, दुआ किया, पलट गया। जब पलटा तो अली की तरफ मुस्कुरा के कहा, ए अली, अब तू अपनी असर पढ़ ले। जब तूने आज तक कज़ा नहीं पढ़ी है तो फिर इसे भी कज़ा नहीं, अदा पढ़ ले। अली खड़े हुए, सूरज डूब नहीं रहा है। अली रुकू में गए, सूरज डूब नहीं रहा। अली सजदे में गए, सूरज डूब नहीं रहा। दूसरी रकत में अली है, सूरज डूब नहीं रहा। फिर रुकू में है, सूरज डूब नहीं रहा। मैंने विचारों की दुनिया में, आलमे ख्याल में सूरज से पूछा, ऐ सूरज कब डूबेगा? सूरज ने जवाब दिया, पहले पूछता तो मैं बता देता इस समय डूबूंगा। अब अली से पूछो, अब अली से पूछो कब इनकी नमाज़े असर पूरी होगी? कहा क्यों? कहा रोजाना मैं सभी के लिए निकलता था, इसलिए टाइम पे डूबता था। आज मैं सभी के लिए नहीं, सिर्फ अली के लिए निकला। अब जब तक अली की नमाज मुकम्मल नहीं होगी मैं नहीं डूबूंगा। जरा देखो यार, एक जुमला अचानक जहन में आ गया, अचानक आ गया। अल्लाह करे आपको पसंद आ जाए कि जब तक, तवज्जो है, जब तक अली ने अपनी नमाज, मैं फिर दोहरा दूं, अली ने अपनी नमाज नबी पर जब तक कुर्बान नहीं की थी तब तक अली सूरज को देखा करते थे, और जब कुर्बान कर दी तो सूरज अली को देख रहा। या अली, या अली, या जिंदाबाद, जिंदाबाद,
जिंदाबाद अब आइए फिर नमरूद और इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम ने कौन सी दलील दी थी कि अगर तू खुदा है तो पश्चिम से निकाल। कहा था कि नहीं? वो बोल दो यार, बहुत बुरा हाल है। पश्चिम से, अगर तू खुदा है तो। हजरत इब्राहिम ने नमरूद से क्या कहा था? अगर तू खुदा है तो। हाँ माशाअल्लाह, पश्चिम से, तवज्जो चाहूंगा, पश्चिम से निकाल। नमरूद तो नहीं निकाल सका, नबी ने निकाला कि नहीं? अली के लिए मेरे मुस्तफा ने निकाला कि नहीं? कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि हजरत इब्राहिम की दलील की रोशनी में, ऐ महबूब, कहीं इब्राहिम की दलील की रोशनी में लोग तुझे खुदा न कह दे, इसलिए कह दो आना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह इंसान हूं। बात समझ में आ रही है ना? मतलब साफ है। गोया रब्बे काबा ये फरमा रहा कि ऐ मुस्तफा, मैंने तुम्हें जमीन में इसीलिए रखा ताकि लोग खुदा न समझें। आमिना का बेटा बनाया ताकि लोग खुदा न समझें। अब्दुल्ला का बेटा बनाया ताकि लोग खुदा न समझें। बचपन में अबू तालिब से उनकी उंगली पकड़वाया ताकि लोग खुदा न समझें। अब्दुल मुत्तलिब का पोता बनाया ताकि लोग खुदा न समझें। ऐ मुस्तफा, मैंने तुम्हें अली का भाई बनाया ताकि लोग खुदा न समझें। अबू बकर उमर का साथी बनाया ताकि लोग खुदा न समझे। तुझसे पेट पे पत्थर उठवाए ताकि लोग खुदा न समझे। तुझे भूखा रहने दिया ताकि लोग खुदा न समझे। तुझे प्यासा रहने दिया ताकि लोग खुदा न समझे। तेरे बचपन में तुझसे बकरियां चरवाई ताकि लोग खुदा न समझे। आपसे हमने कारोबार करवाया ताकि लोग खुदा न समझे। फातिमा का बाबा बनाया ताकि लोग खुदा न समझे। हसनैन का नाना बनाया ताकि लोग खुदा न समझे। शाबे अबी तालिब में 2.5 साल नजरबंद रहने दिया ताकि लोग खुदा न समझे। ताइफ की धरती पे जिस्म को लहू लुहान होने दिया ताकि लोग खुदा न समझे। रात ही रात खाने काबा से, मस्जिद खाने काबा से महबूब तुझे हिजरत का हुक्म देकर मदीना भिजवा दिया ताकि लोग खुदा न समझे। 3 दिन गारे सौर में रहने दिया ताकि लोग खुदा न समझे। मदीने पहुंचकर बदर उहद, खैबर और खंदक में तुमसे तलवार उठवाया ताकि लोग खुदा न समझे। ऐ मुस्तफा, मैंने तुम्हें मकान में इसलिए रखा ताकि खुदा न समझे, और लामका इसलिए बुलाया ताकि अपने जैसा न समझे। क्या बात है! हारे तकबीर, हारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, हारे तकबीर, हारे रिसालत। हाँ, बहुत उम्दा, वाह वाह। बात समझ में आ गई है ना? अब ये जो दृष्टिकोण का, जो विचारधारा का जो फर्क है, उस पे फिर आइए। वो लोग जो मुदाहनीन हैं, उनकी विचारधारा ये है कि हम मिसलियत का सिर्फ इकरार, फजीलत का सिर्फ इकरार करते हैं, मिसलियत का प्रचार करते हैं। और हम लोग मिसलियत का सिर्फ इकरार करते हैं, फजीलत का प्रचार करते हैं। ये जो 2 अलग अलग दृष्टिकोण है, पॉइंट ऑफ व्यू है, जो 2 अलग अलग विचारधारा है, इस विचारधारा ही ने सारा बेड़ा गर्क किया, जिसने सही तफहीम से हमें महरूम रखा। इसी वाक़े को जो भी आपने सुना ना, सूरज पलटाने का, सुन्नी किस तरह बयान करता है वो आपने सुन लिया। जब ये लोग इस वाक़े को बयान करते हैं, इनकार कर नहीं सकते क्योंकि हदीस है ना भैया, तवज्जो है ना? इनकार करते नहीं, हदीस है, कैसे इनकार करें? तो जब इनके मुल्ला जी से पूछो, भाई ये जो सूरज को पलटाया नबी ने, इसके बारे में तुम क्या कहते हो? तो दृष्टिकोण के फर्क ने उनके सीने में इतना कीना डाल दिया है कि वो जानते हो क्या कहते हैं? देखा नबी की दुआ का पावर, देखा अल्लाह ने अपने नबियों की दुआ में बड़ी ताकत दी है। नबी ने दुआ मांगी तो अल्लाह ने सूरज पलटा दिया। बात ये भी गलत नहीं है कि नबी ने दुआ मांगी, अल्लाह ने सूरज पलटा दिया, बात बिल्कुल सही है।
لیکن یہ کتنی صحیح ہوتی کہ نبی نے لب ہلایا خدا نے سب ہلایا. صرف وچار دھارا کا فرق دیکھیے. اسی حدیث کو ہم بھی پڑھتے ہیں, اسی حدیث کو وہ بھی پڑھتے ہیں. وہ کوشش کرتے ہیں ہم ایسا سنائیں کہ فضیلت چھپ جائے, مثلیت دکھ جائے, اور ہم کوشش کرتے ہیں ہم ایسا سنائیں کہ مثلیت چھپ جائے, فضیلت دکھ جائے. ہم وہ چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے, اور وہ چاہتے ہیں جو ان کے اپنے اپنے ملے مانگتے ہیں. تو توجہ کے ساتھ کہہ دینا ان سے ڈنکے کی چوٹ پر کہ اگر دعا کی بات ہے تو تمہاری پوری جماعت ہاتھ اٹھا کر گر گڑا کر ذرا دعا مانگے, دیکھے سورج تیری دعا سے پلٹتا ہے کہ نہیں. ارے یہی تو لب مصطفیٰ کا کمال ہے, ان کی ذات ایک طرف تیری جماعت ہے. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. یہ درشٹی کوڑ کا فرق. ایک حدیث اور ہے, صرف نظریے کا فرق ہو جائے تو عقیدہ بدل جاتا ہے. جیسے ایک واقعہ حدیث ہے, قرآن کی آیت بھی ہے, وہ بھی انکار نہیں کرتے. پہلے واقعہ سنو. ہجرت کی رات ہے, آخری بات ہے, اسی پہ انشاءاللہ گفتگو سمیٹوں گا, کیونکہ اب میں اتنا ظلم نہیں کر سکتا جتنا آپ نے مجھے دیر میں بٹھا کے کیا ہے. ہاں, میں زیادہ ظلم نہیں کروں گا. میں تو منتظر تھا کہ صحیح وقت پہ بلا لیا جائے, لیکن آنے کے بعد بھی آدھا گھنٹہ بیٹھنا پڑا. تو توجہ ہے نا آپ لوگوں کی. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, ہجرت کی رات ہے, انوار و تجلیات کی برسات ہے, علی کا نبی کا ساتھ ہے, باہر کافروں کی گھات ہے. ارے اب تو کہہ دو واللہ کیا بات ہے. بڑی مشہور حدیث ہے, سرکار نے دروازہ تھوڑا سا کھولا تو دیکھا 40 کافر, الگ الگ قبیلوں کے سردار, اور ہر کافر کے پاس 2 آنکھ, تو کل 80 آنکھ دروازے پہ ٹکر 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 ٹکر, کہ بس نبی نکلیں اور ہم ماریں. اس ارادے دیکھیں with the intention of murder, کہ نبی نکلیں ہم ماریں. حضور نے اس منظر کو محسوس کیا. توجہ چاہوں گا. علی کو اٹھایا, علی کو اٹھایا, کہا اے علی اٹھو اٹھو. کہا سرکار کیا بات ہے؟ کہا اللہ کا حکم آ گیا ہے, مجھے رات ہی رات ہجرت پہ نکلنا ہے, میرا یار ابو بکر میرا انتظار کر رہا ہے. تو سرکار مجھے کیوں اٹھایا؟ فرمایا باہر 40 کافر ہیں, میں ان سے چھپ کے نکل لوں گا, تم اپنے بستر پہ نہیں میرے بستر پہ لیٹو. اور علی ایسا لیٹے کہ لیٹے ہیں علی, لیکن لگ رہا ہے لیٹے ہیں نبی. کیا بات ہے, کیا کردار ہے. اور سرکار نے فرمایا یہ کچھ امانتیں ان کافروں کی میرے پاس ہیں. کافر بھی عجیب تھے, حضور پر ایمان نہیں لائے, مگر حضور سے زیادہ ایماندار بھی کسی کو نہیں سمجھتے تھے. سرکار نے فرمایا یہ عتبہ, شیبہ, امیہ بن خلف, ابو جہل وغیرہ, ان کی امانتیں میرے پاس ہیں. یہ لوگ اپنی بیوی کو بھی نہیں دیتے کہ کہیں اپنے میکے میں پاس نہ کر دیں, مجھے دیتے ہیں کیونکہ میں جو لیتا ہوں وہی لوٹاتا ہوں. اے علی انہوں نے مجھ پہ بھروسہ کیا, میں تجھ پہ بھروسہ کرتا ہوں. ان امانتوں کو اپنے پاس رکھنا, میٹنگ بعد میں کر لیجئے گا. ان امانتوں کو اپنے پاس رکھنا اور سو جانا, صبح اٹھنا, جن کی امانتیں ہیں انہیں بانٹنا, پھر مدینے آ کے ملنا. علی سو گئے, علی سو گئے. اچھا ایک بات بتاؤ, اگر کسی شریف انسان کے گھر 2 بجے رات کو اسی ٹائم 2 پولیس والے آ جائیں اور دروازہ کھٹکھٹا دیں, کیا حال ہوگا؟ میرا یقین ہے کہ وردی دیکھتے ہی چہرے پہ زردی آ جائے گی. پولیس آئی کیوں آئی, کیا آئی کیوں, چاہے بیچارے چائے پینے آئے ہو کہ کوئی دکان نہیں کھلی ہے, چلو مولانا کے گھر چائے پی لیں, لیکن چہرہ وردی دیکھا تو چہرے پہ زردی. یہ گھبراہٹ نیچرل ہے. علی کی جرات دیکھو, موت کی زد میں علی کا بستر,
40 काफिर हाथ में तलवार लिए हैं और अली फरमाते हैं इन्नी निम्तु तिलकल लैला मा निम्तु मिन कब्ल कत्तो। उस रात में इतनी गहरी नींद सोया कि पूरे जीवन में इतनी मीठी नींद ही नहीं आई। वाह वाह कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई खौफ नहीं। या अली मामला क्या? तो एक आशिक ने पूछा तो सरकार ने जवाब दिया इसलिए मैं मीठी नींद सोया क्योंकि मेरी जिंदगी की जमानत नबी ने ले ली। बेशक वाह जिंदगी की गारंटी किसने ले ली? नबी ने ले। कहा वो कैसे? कहा नबी ने फरमाया कि ऐ अली सो जा, सुबह उठना, अमानतें बांटना, फिर मदीने आके मिलना। मैं समझ गया उठने के लिए सोना जरूरी है, अमानतें बांटने के लिए जिंदा रहना जरूरी है। मैं समझ गया कि अबू तालिब के बेटे को मौत कभी भी आ सकती है मगर आज की रात नहीं आएगी क्योंकि मेरी जिंदगी की जमानत नबी ने ले ली। वाह अरे वाह 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 क्या बात है। ये लोग तो जिंदा हैं, आप भी जरा जिंदगी से कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब एक जुमला दे रहा हूं, जिसकी जमानत। ये मेरे वालिद साहब का जुमला है जो अभी तो हदीस सुना दी। मेरे वालिद साहब ने इसमें एक नतीजा निकाला है। मैं उनके जुमलों का अमीन भी हूं, उनका फितरी जानशीन भी हूं, तो इसलिए मैं वो जुमला हजरत का आपको तबर्रुकन दे रहा हूं। हजरत फरमाते हैं कि जिसकी जमानत नबी ले ले वो अली होता है अली, और जिसकी जमानत अली ले ले वो वली होता है वली। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शमाइन हजरात, आप सभी से दिली गुजारिश है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए और कमर उस्मान गनी साहब के लिए, फिलिस्तीन और गजा के लिए, मस्जिद अक्सा के लिए और तमाम जो मुसलमान परेशान हैं उन सभी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। हर नमाज में उनके लिए दुआ करें। रब्बो तबारक व तआला से ये दुआ है कि उन्हें गैब से मदद अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल